Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to TKS online classes. Today's quote is, all that glitters are not gold. Okay students, now take out your social learning book. Okay students, before going to the new topic, first of all I will ask you the question about the culture diversity, languages and festival. Till that I have explained you. Now who will give me the answer? What is culture diversity? Raise your hand. Hurry up. Culture diversity क्या होती है? Yes, anyone? Manahil Ali. Yes, Manahil Ali, unmute your mic. Yes, Ali Abbas, unmute your mic. Yes, Ali Abbas, unmute your mic. Yes, Ali Abbas, tell me about the culture diversity of Pakistan. People from different origins live in the 4 provinces. Okay. Now tell me about the languages. Yes, Ali Abbas. जी लैंग्वेज होते हैं जो अपने अपने कंट्री में बोले जाते हैं. जी, लैंग्वेज ज़ुबानें होती हैं. तो कल्चर डाइवर्सिटी में लैंग्वेजेस क्या हैं? यानी हमारे यहाँ कल्चर पे कौन सी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है? कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? यस, टेल मी. ओके, यस रेहान. Yes, Rehan, unmute your mic. Yes, Rehan. Yes, Rehan, your mic is unmute. Yes, Rehan, tell me the languages spoken in Pakistan. Yes. Balochi. Okay, good, Rehan. Okay. Yes. Good. Okay, Fatma Waqas, unmute your mic. Yes, but Fatma Waqas, yes, tell me about the festivals. Yes, Fatma Waqas. Yes, Fatma Waqas. Yes, ma'am. जी, tell me about the festivals. Which festival? Culture festival. Yes, tell me about yes, बच्चे, about the culture. We have a national festival and we have religious festivals, ना? So tell me the just name of the festivals celebrated in Pakistan. Yes. 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 And other day. Okay. Good, Fatma Waqas. Okay. Lower hands. सबके lower hands. Okay. Okay, students. Now today we are starting our new topic. Take out your book, page number 3. Hurry up, students. All of you take out your book, page number 3. Book should be in your hands. Okay, today's topic is costumes. आज का topic क्या है? Costumes. So, people wear a wide range of clothes depending on the climate and tradition of a place. They belong to Shalwar kameez is the national dress of Pakistan. So,
स्टूडेंट्स कॉस्ट्यूम्स क्या होता है, जो हम कपड़े वगैरह डिफरेंट जो है हम डिज़ाइन के पहनते हैं उसको हम कॉस्ट्यूम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट्यूम्स। सो जो नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज़ कमीज़ एंड शलवार। हमारा नेशनल ड्रेस क्या है? कमीज़ एंड शलवार। ओके, टर्न योर पेज नंबर 4. Page number 4. Take out your page number 4, all of you. Okay, students, can you see this picture? आप सबको ये पिक्चर नज़र आ रही है? कुर्ता, तहमत and turban constitute Punjabi men's traditional dress. Punjabi women wear shalwar, kameez और कुर्ता. Students, कुर्ता. Do you know the कुर्ता? जो हम ये कमीज़ स्ट्रेट जो कमीज़ हम पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? कुर्ता। तहमत हम किसको कहते हैं? इट इज़ अ पंजाबी वर्जन ऑफ लुंगी। ठीक है, पंजाबी का जो वर्जन है उसमें क्या है? तहमत वर्ड है और इसको हम लुंगी भी कहते हैं। लुंगी क्या होती है? विच हैज़ फोल्ड्स एट द फ्रंट। आप लोगों ने अक्सर पंजाबी मर्दों को देखा होगा, उन्होंने एक कपड़ा सा ऐसे टर्न किया होता है और उसको फोल्डिंग यानी कि प्लेट्स टाइप सी की हुई होती हैं, डाली होती हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? लुंगी। जो उन्होंने खुली सी पहनी होती हैं, आगे प्लेट्स होती हैं, उसको हम कहते हैं ठामट। ओके, टर्बन हम किसको कहते हैं? पगड़ी। कैन यू सी दिस पिक्चर? ठीक है, इसमें इसने पगड़ी पहनी हुई है। सो हमारे पास कुर्ता, तहमत और टर्बन, ये तीनों चीज़ें मैंस ट्रेडिशनल ड्रेस है। यानी जो पंजाब के लोग हैं उनका ट्रेडिशनल ड्रेस में कुर्ता, तहमत और टर्बन आता है हमारे पास। और वुमेन जो हमारे पास औरतें होती हैं उनका है शलवार, कमीज़ या हम कह सकते हैं कुर्ता। ठीक है, साथ कभी कमीज़ होती है एंड कुर्ता। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कमीज़ एंड कुर्ता। ठीक है, कमीज़ हमारे पास जो है सिंपल सी होती है और कुर्ता हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में, थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में होता है। नाउ कैन यू सी दिस पिक्चर? बलोची। Yes, the Balochi wear various styles of kameez, shalwar, turban, kulla and head scarves. वो स्कार्फ्स वगैरह भी लेते हैं। तो बलोची जो है वो कहते हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स है। बलोची जो हमारे पास है उनके पास एक स्टाइल का नहीं होता, उनके पास डिफरेंट स्टाइल्स के जो हैं वो ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं। एंड दे हैव अ कुल्ला जो है हम कहते हैं ये भी पगड़ी टाइप से ही होती है, पर बलोची का थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है उसको वेयर करने का। वो आगे यूं करके गले में भी लेके आते हैं, तो इसको हम कहते हैं कुल्ला। एंड हेड स्कार्फ्स यानी कि वो सर को कवर भी करते हैं। ठीक है, उसको स्कार्फ्स जो है, हेड स्कार्फ जो है वो दुपट्टा वगैरह भी हम ले सकते हैं, उनको डिफरेंट स्टाइल में उसको कवर करते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो उनके पास क्या होता है? वो हेड स्कार्फ। नाउ इट पशिक हमारे पास है। पशिक इज़ अ ट्रेडिशनल बलोची ड्रेस। अब पशिक कौन सा ड्रेस होता है? ये बलोची लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब ये है दैट हैवी एम्ब्रॉयडरी लीव्स एंड बॉर्डर्स। उनके जो कपड़े होते हैं, पशिक जो है वो क्या है? बलोची लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब ये है कि हैवी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस। ठीक है, हैवी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस मीन्स कि उनके जो स्लीव्स होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, वो उस पर काम हुआ होता है। एंड इट हैज़ ऑल्सो द पॉकेट्स ऑल्सो। ठीक है, उनकी पॉकेट्स वगैरह भी होती हैं। तो पशिक जो है वो एम्ब्रॉयडरी सूट्स जो होते हैं, जो बलोची होते हैं, उनका होता है। ये पशिक जो है वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये बलोची लैंग्वेज का है। नाउ इट्स कम्स टूवर्ड्स द सिंध। कैन यू सी दिस? ये क्या है? सिंध कल्चर शो किया गया है आपको। द सिंधी कैप एंड अजरक आर द पार्ट ऑफ सिंधी मैंस ड्रेस। सिंधी कैप, कैन यू सी दिस बॉय? इसने जो ये कैप पहनी हुई है ये सिंधी कैप है। एंड अजरक क्या होता है? ये सिंध की फेमस जो है चादर होती है, जो मैन जो उनके आदमी होते हैं, जैसे इसने भी ली हुई है शोल्डर्स पर, वो ऐसे लेते हैं, इसको हम अजरक कहते हैं। सो वो कहे मैंस ट्रेडिशनल है हमारे पास सिंधी कैप एंड अजरक। ये किसको शो करे? ये मैंस ट्रेडिशनल ड्रेस है। और वुमेन्स जो हैं दे वेयर कमीज़ एंड शलवार और कुर्ता। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स द कश्मीर। अब कश्मीर जो है हमारे पास, यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, अब
Piran is the prominent traditional dress of Kashmiri man and woman. Women wear traditional hand embroidered clothes. अब पिरान हमारे पास क्या है, ये भी ट्रेडिशनल आउटफिट फॉर बोथ मेल्स एंड मैन वुमेन्स एंड मैंस दोनों के लिए है हमारे पास. और ये क्या होता है, ये वो ड्रेस होता है जिसमें वो 2 गाउन्स एक साथ पहनते हैं. मतलब एक लोअर गाउन होता है और उसके ऊपर दूसरा गाउन भी वो पहनते हैं. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 गाउन्स, वन ओवर अदर, एक के ऊपर दूसरा होता है. अक्सर आपने कश्मीर के लोगों को देखा होगा, उन्होंने एक गाउन नीचे पहना होता है और उसके ऊपर जो है दूसरा भी उन्होंने पहना होता है जो कि हाफ आगे से ओपन होता है. उसको हम कहते हैं फिरन. फिरन इज़ अ प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी मैन एंड वोमेन. ये दोनों के लिए है, उन दोनों का ट्रेडिशनल ड्रेस है. इसके अलावा ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स भी कश्मीर में पहने जाते हैं, वहाँ का ट्रेडिशनल में हमारे पास आता है. नाउ कम टू कौन सा कल्चर है ये, यहाँ का खैबर पख्तूनख्वा. ठीक है, हमारा रीजन. सो खैबर पख्तूनख्वा का क्या है, पख्तून मेंस यूजली वेयर शलवार कमीज़. ठीक है, यहाँ पर यूजली क्या पहना जाता है, शलवार एंड कमीज़. वेस्ट कोट तो आप सबको पता होगा, जो हमारे यहाँ पर मैन जो है अक्सर पहनते हैं. यूजली जो है जुमे के दिन भी कमीज शलवार के ऊपर पहनना पसंद करते हैं. समटाइम्स जो है वेडिंग्स वगैरह में जो कमीज शलवार के ऊपर कोट सा पहना जाता है जो कि आदमी पहनते हैं, उनको हम वेस्ट कोट कहते हैं. इसका भी थोड़ा आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा. इट इज़ वेस्ट कोट एंड शॉल, और शॉल भी ली जाती है यूजली यहाँ पर इन विंटर्स. यहाँ पर जो है गर्म शॉल ली जाती है और समर्स में भी लाइट जो है कॉटन की इस टाइप की शॉल वेयर करते हैं यहाँ के मेंस, आप सबको पता है. विद द टर्बन समटाइम्स यहाँ पर भी पगड़ी वगैरह पहनी जाती है. एंड अ पकूल कैप कौन सी होती है, ये चित्राली कैप होती है. चित्राली कैप आप सब ने देखा होगा, ये वुल की बनी होती है, ब्राउन ब्लैक, आजकल तो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है, जो यूजली सर्दी में जो है पहनते हैं, जिसको चित्राली कैप भी कहते हैं. ठीक है, उसको हम पकूल हैट कहते हैं. वुमेन वेयर एम्ब्रॉयडरी फ्रॉक्स विद पजामा एंड दुपट्टा. और क्या है, औरतें क्या पहनती हैं, वो फ्रॉक्स वगैरह पहनती है, उसके साथ पजामा भी होता है और दुपट्टा भी पहना जाता है. सो दीज आर द कॉस्ट्यूम्स. ये डिफरेंट हमारे पास प्रोविंशियल कॉस्ट्यूम्स आपको शो किए गए हैं. स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कितने हमारे पास यहाँ शो किए गए हैं, 5. कितने शो किए गए, 5. पंजाबी, बलोची, सिंधी, कश्मीरी, पख्तून. ठीक है, ये 5 जो है इनके आपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो है आपको पता होना चाहिए, और मैं आपसे इंशाल्लाह कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगी. Now comes towards the next page. Hurry up students, turn to the next page. Page number which? Page number 5. आप सबको नज़र आ रहा है. What is here? Crafts. ये क्या है, crafts. Crafts कहते किसको हैं, ये an activity involving skill in making things by hand. ठीक है, ये भी एक एक्टिविटी है जो लोग चीज़ें बनाते हैं अपने हाथों से, उनके अंदर ये स्किल्स होते हैं. ठीक है, जो है उनमें ये खूबियाँ होती हैं उनको, तो वो क्या है, अपने हाथों से जो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं उनको हम क्राफ्ट्स कहते हैं. एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, उसको हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट्स कहते हैं. क्या कहते हैं, क्राफ्ट्स. नाउ crafts is an integral part of culture. Okay students, there are the difficult meanings. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में कोई ऐसा डिफ़िकल्ट मीनिंग नहीं था. सो इंट्रीगल का क्या मतलब है, होल, कंप्लीट, मुकम्मल, पूरा. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इंट्रीगल. हरी अप स्टूडेंट्स, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इंट्रीगल. इंटीग्रल, होल, कंप्लीट, मुकम्मल या पूरा. Hurry up, write down it. Done? Okay.
सो क्राफ्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। हमारे कल्चर का जो है ये एक्चुअली ये एक इसके बगैर, क्राफ्ट्स के बगैर हमारा कल्चर इनकम्प्लीट है, ठीक है। हमारे कल्चर ही जो है हमारी जो है क्राफ्ट्स के थ्रू शो होता है। इन पाकिस्तान आर्टिस्ट कौन होते हैं? आर्टिस्ट वो होते हैं अ पर्सन, अ स्किलफुल पर्सन, ठीक है। कारीगर जो होते हैं मीन्स जो अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट अ स्किलफुल पर्सन। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हाथों से, आर्टिस्ट हम डिफरेंट फील्ड्स के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्योंकि हम क्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो हम कारीगर, हम जो है वर्ड यूज़ करेंगे अ स्किलफुल पर्सन, ठीक है। स्किलफुल का मतलब है कि उनमें एबिलिटी होती है, महारत होती है उनकी, बाय नेचुरली अल्लाह ने उनको 30 सलाहियतें दी हुई हैं कि वो इस चीज़ को बना सकते हैं। आर्टिस्ट अ स्किलफुल पर्सन। Write down the meaning. Okay, done. Good. Okay. And in Pakistan, artists and craftsmen. Craftsmen कौन होते हैं? जो एक्सपर्टर्स होते हैं, जिसको हम हिजमत भी कहते हैं, ठीक है। क्राफ्ट्समैन, एक्सपर्ट, हिजमत, हुनरमंद जो होते हैं, ठीक है। ठीक है। क्राफ्टमैन, एक्सपर्ट, जो हुनर जिसके पास होता है, ठीक है, जो हुनर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट्समैन। डन। From different parts of country exhibit their culture by their handicrafts. Handicrafts means हाथ से जो बनाई जाती हैं चीज़ें। पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट जो है फेमस है, मशहूर है पूरी दुनिया में। सम आर शोन बिलो, कुछ यहाँ पर नीचे भी बताई हुई हैं, ठीक है। कैन यू सी दिस पिक्चर? ये कौन सी है? ये सिंधी कैप है। ये क्या है हमारे पास? सिंधी कैप है, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस उसमें यहाँ पर बताया था कि सिंधी में जो है हमारे पास क्या है? सिंधी कैप और अजरक। तो ये आप देख सकते हो कि ये सिंधी अजरक और ये सिंधी कैप है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कमालियाज हैंड वुवन क्लोथ। फिर हमारे पास यहाँ पर एक लैम्प है, ये मुल्तानी कैमल स्किन लैम्प, ठीक है। ये भी हाथ की बनाई हुई, ये सारी चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं। देन स्पोर्ट्स गुड्स ऑफ सियालकोट। स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, आपको पता होगा आपके जो बैट बॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस वगैरह ये सब स्पोर्ट्स गुड्स हैं और ये कहाँ पर बनते हैं? सियालकोट। सियालकोट फेमस है स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। देन इट इज़ एम्ब्रॉयडरी ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान जो है वो एम्ब्रॉयडरी पे फेमस है, ठीक है। चिनोट वुडन फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर तो जानते हैं ना, जो लकड़ी से फर्नीचर बनता है, हमारा बेड होता है, सोफ़ा होता है, चेयर्स, टेबल्स, डोर वगैरह ये लकड़ी के बने होते हैं। तो चिनोट, ठीक है, चिनोटी वुडन फर्नीचर हमारे पास। एंड देन वी हैव, कैन यू सी दिस स्पून्स, fork, knife, yes, it is cutlery of Wazirabad. So these are some of the famous handicrafts. And now students, before going to the, yes, there is only 2 minutes left. I want that anyone want to ask something? Raise your hand. Okay. Okay, बेटे एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स एम्ब्रॉयडरी जो थ्रेड से काम हुआ हुआ है। कैन यू सी दिस पिक्चर, ठीक है बच्चे। एम्ब्रॉयडरी इसको कहते हैं जो थ्रेड से जो है काम हुआ होता है, धागे का जो काम हुआ होता है, हम उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। क्लियर? ओके, हु इज देयर? यस रेहान, आस्क। यस रेहान। It's clear now. जी बच्चे। I was asking about embroidery, but it's now clear. Okay, it's clear. Good, very good. Okay.
Yes, Fatma Waqas. Ma'am, my question is, what is the meaning of embroidered Embroidered बच्चे, and embroidered. Embroidered. ओके बच्चे, आई हैव एक्सप्लेन नाउ दैट एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब है जो थ्रेड से काम हुआ होता है, ठीक है। हमारे जो कपड़ों पर आप देख सकते हो, जिनको हम थोड़ा कह सकते हो फैंसी भी कह सकते हैं, लेकिन फैंसी में भी हमारे पास दो तरह से आते हैं। एक जो थ्रेड का जिस पे काम होता है, यानी धागे का, थ्रेड का मतलब है धागे का। आपके अक्सर ड्रेसेस वगैरह होते हैं, गर्ल्स के होते हैं, जिस पे धागे से काम हुआ होता है, ठीक है। बॉर्डर्स पे, कमीज़ के एंड पे, स्लीव्स पर होते हैं, इसको हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, ठीक है। तो वो ड्रेसेस जो है हमारे पास, उसको हम एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, क्लास इज़ ओवर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।